welcome you all in my surgery online class. I am Dr. Megha Chaudhary, Assistant Professor in Surgery, and today we will talk about peptic ulcer. What is peptic ulcer? Now, first is what is ulcer? Ulcer is a break in epithelium, or in simple or brief we can describe it a break in epithelium or a open sore. So ulcer is an open sore. अब ये अल्सर फॉर्मेशन स्टमक और इंटेस्टाइन में जब होगा तो हम इसे कहेंगे पेप्टिक अल्सर. सो लेट्स बिगिन. कंसीडर दिस इज अ स्टमक. आई एम मेकिंग अ डायग्राम. दिस इज अ स्टमक and this is intestine. So the size, location, suppose यहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है तो then it is a stomach ulcer, and if ulcer formation is here in the intestine then it is called duodenal ulcer. Duodenal ulcer. So stomach ulcer and duodenal ulcer. This is the size. Now let's talk about the symptoms. Because it is a ulcer, then patient will naturally complain of pain. अगर स्टमक में है तो अपर एब्डोमेन में पेन कहेगा पेशेंट. डिस्कम्फर्ट, पेन, डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, belching, acidity. Then why patient will complain of acidity, heartburn, belching, sore eructations, vomiting, nausea? Because acid formation ज़्यादा हो रहा है. Pathology is this: acid formation is increased and this acid is forming ulcer in the stomach or intestine or the both. So why the acid is increasing? Because जो superficial layer है, the epithelium layer, this is the epithelium layer, the protective layer, it is comprised of mucosa and bicarbonates. So this epithelial layer, the supermost and superficial layer in the stomach and intestine, is continuously producing mucus and bicarbonates. This will neutralize the acid in the stomach. So क्या होगा? जैसे ये acid neutralize होगा, balance हो जाएगा, but जब ये acid ज़्यादा हो जाएगा, then it will produce the ulcers in the stomach or duodenum. Why acid production is increasing? Because the etiology is due to stress. If patient is on medications from so long, like medicines जैसे non-steroidal anti-inflammatory हो गई, anticoagulants हो गए, then painkillers हो गए like brufen, then aspirin, जैसे कि anticoagulants हो गए aspirin, then brufen हो गया पेन किलर, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, स्टीरॉइड्स. अगर पेशेंट बहुत लंबे टाइम से मेडिकेशन पे है तो दिस मेडिसिन विल डिस्ट्रॉय द सुपरफिशियल लेयर, दैट इज द एपिथेलियम लेयर इन द स्टमक एंड ड्यूडेनम. इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर. सो एसिड फॉर्मेशन बढ़ जाएगा क्योंकि म्यूकस जो है, म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एसिड विल इंक्रीज. Then, beside the stress and medications, there is a bacteria called Helicobacter pylori, which resides and live into the epithelium itself. But अगर वो बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो गई, then this will also destroy the epithelium, the superficial epithelium. And अगर epithelium destroy होगी तो mucus formation अच्छे से नहीं हो पाएगा, कम हो जाएगा. With the decrease in mucus level, acid will स्टार्ट इंक्रीज. तो जब एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इट विल फॉर्म अल्सरेशंस इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. देन दिस इज द etiology. सिम्टम्स में इसीलिए अगेन गोइंग बैक इनटू द सिम्टम्स, इसलिए सिम्टम्स में पेशेंट विल कंप्लेन फॉर acid formation, eruptions,
sore irritations, belching, discomfort, heaviness, irritation, and also with this patient can complain of headache, dizziness, vomiting. And जो ये vomiting है in later cases, this vomiting can occur with blood. ब्लड क्यों? क्योंकि जब लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर होगा स्टमक के अंदर, जो बहुत क्रॉनिक है, बहुत लंबे टाइम से जो अल्सर है स्टमक के अंदर, दिस विल स्प्रेड एंड प्रोड्यूस अ होल इनटू द स्टमक, जिससे क्या होगा, जो फ्लूइड है स्टमक का दैट विल ट्रेवल इनटू द पेरिटोनियम एंड विल क्रिएट पेरिटोनाइटिस. पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, हेमरेज होगा. विद दिस हेमरेज अगर ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि वो वॉमिटिंग में भी आ रही है, स्टूल में भी, दैट इज मेलेना, इफ इट्स ब्लड इज कमिंग इनटू द स्टूल, देन एनीमिया होगा पेशेंट को. सो इफ लॉन्ग स्टैंडिंग पेप्टिक अल्सर, देयर विल बी एनीमिया इनटू द पेशेंट. ऑल्सो जो पाइलोरस है, दैट इज स्टमक के बाद में जो फूड कंटेंट है, दैट विल कम इनटू द ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन. ओके, सो इफ पाइलोरस, अब क्या होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग पेप्टिक अल्सर है तो पाइलोरस विल नैरो. अगर ये नैरो होगा तो वहां पे भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, पेन, पेशेंट कंप्लेन करेगा डॉक्टर के पास आके, एंड इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस. पाइलोरिक स्टेनोसिस बिकॉज नैरोइंग हो गया है. तो जैसे फूड यहाँ पे अंदर जाएगा स्टमक से इंटेस्टाइन में, तो दैट विल क्रिएट इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, पेन in the upper abdomen or in the abdomen. So these are the complications. Beside this, this long standing peptic ulcer can turn into a cancer also, but this happens only rarely. Then test में, investigation में क्या कहेंगे पेशेंट को कराने के लिए? ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ब्रेथ टेस्ट, देन लिक्विड जिसके अंदर बेरियम होगा, पेशेंट को बोलेंगे टू स्वेलो दैट, एक्सरे के अंदर क्लियरली दिखेगा. एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी में एंडोस्कोप अटैच होता है, दैट इज अ लेंस. तो जैसे जैसे एंडोस्कोपी के थ्रू जब एंडोस्कोप अंदर जाएगा फ्रॉम माउथ इनटू द स्टमक देन इंटेस्टाइन, देन इट विल डिटेक्ट कहाँ पे जो अल्सर है वो कहाँ पे है, किस रेंज का है, एंड कॉम्प्लिकेशंस अभी आई है कि नहीं आई, सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी. सो इन इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ब्रेथ टेस्ट, एंडोस्कोपी एंड बेरियम स्वेलो, दिस आर द इन्वेस्टिगेशंस. इन ट्रीटमेंट पेशेंट को क्या बोलेंगे? प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, एंटासिड्स. This will reduce the acid formation. This medicines will block the cells which are producing acids. Beside this, bismuth supplements patient को recommend करना है. जो बहुत टाइम से medications है, steroids, anticoagulants, वो छोड़ने के लिए patient को motivate करना है. And to avoid spicy food, alcohol, and patient को समझाना है कि stress का भी effect इस पे आता है. The important thing I forget to mention, there is a marked symptom which is also called tom tip. अगर स्टमक में अल्सर है, if ulcer is present in stomach, then after eating पेशेंट को पेन होगा, क्योंकि जैसे ही फूड विल एंटर फ्रॉम माउथ इनटू द स्टमक, इट विल प्रोड्यूस इरिटेशन. तो इन प्रेजेंस ऑफ स्टमक अल्सर, पेशेंट विल कंप्लेन दैट ही और शी इज हैविंग पेन, स्पेशली आफ्टर हैविंग लंच और डिनर, दैट इज हैविंग फूड. सो आफ्टर फूड पेन विल इंक्रीज. ओके, बट इन केस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, the pain will reduce after eating.
So what is the reason behind it? Because जब फूड एंटर करा है स्टमक के तो इट विल प्रोड्यूस इरिटेशन, तो पेशेंट को पेन होगा इन केस ऑफ स्टमक अल्सर. बट as soon as the food particles will resets down, it will also pop down the acid. तो जैसे जैसे फूड अंदर की तरफ नीचे जाएगा, जब स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, तो विथ फूड देयर विल बी ऑल्सो एसिड गोइंग डाउन. तो पेशेंट को खाना खाने के बाद में आराम मिलेगा. सो आराम कब मिलेगा? इन केस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर. आफ्टर फूड पेशेंट विल फील better. Now let's begin the quick revision of today's topic, peptic ulcer. Peptic ulcers are open sores that develop on inside the lining of stomach and upper portion of small intestine. The common sites are stomach and intestine. The ulcers that occur on inside the stomach are termed as gastric ulcers, and the ulcers occurring inside the upper portion of small intestine, that is duodenum, are called duodenal ulcer, and duodenal ulcers are more common. Now there are layers. जो stomach and intestine में layers हैं. Epithelium layer is the superficial one that produces mucosa and bicarbonates. म्यूकस का फॉर्मेशन होता रहता है. म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स न्यूट्रलाइज करते रहते हैं एसिड को. बट अगर एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा. एंड बीनीथ दिस एपिथेलियल लेयर इज लैमिना प्रोप्रिया दैट इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स. एंड लैमिना प्रोप्रिया के नीचे है मस्कुलरिस म्यूकोसा दैट इज फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ मसल सेल. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस स्मूथ मसल्स ब्रेक डाउन द फूड. सो जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं वो मस्कुलरिस म्यूकोसा के हो रहे हैं एंड वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पैथोफिजियोलॉजी. जब जो सुपरफिशियल लेयर है एपिथेलियम लेयर, इट इज कंटिन्यूसली सिक्रीटिंग बाइकार्बोनेट्स एंड म्यूकस दैट न्यूट्रलाइज द एसिड. बट क्या होता है, कभी अगर ये एपिथेलियल लेयर डैमेज हो गई किसी रीजन से, इफ पेशेंट इज ऑन क्रॉनिक मेडिकेशंस लाइक नॉन स्टेरॉइडल inflammatory drugs and painkillers, steroids, anticoagulants like aspirin and brufen etc. तो इन मेडिकेशन से जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है एपिथेलियम लेयर, ये डैमेज हो जाएगी एंड म्यूकस सिक्रीट नहीं हो पाएगा, तो एसिड फॉर्मेशन को रोक नहीं पाएंगे, एसिड बढ़ता जाएगा. सेकेंड रीजन इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. अगर ये बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया तो ये भी एसिड फॉर्म करेगा एंड प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज करेगा, एपिथेलियम को डैमेज करेगा. देन स्ट्रेस, अल्कोहल, कैफीन एंड स्मोकिंग beside this spicy food, this all increases the acid formation. Now the clinical picture, that are the symptoms. Patient will complain of dyspepsia, indigestion, discomfort, pain, tenderness, then nausea, vomiting, dizziness, headache. इन लेटर केसेस जब क्रॉनिक हो जाएगा तो कॉफी ग्राउंड वॉमिट हो सकती है. डाइजेस्टेड ब्लड आ सकता है वॉमिट में, दैट इज हेमेटोमेसिस. देन मेलेना, डार्क कलर्ड स्टूल, तो स्टूल में भी ब्लड आने लग जाएगा. लंग्स में भी इफेक्ट आ सकता है, ट्रबल ब्रीथिंग हो सकती है, डिस्पनिया होगा, फीलिंग ऑफ फेटनेस, नोजिया कब है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है. अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है, एपिटाइट चेंज, पेशेंट को हो सकता है कि भूख ना लगे, एनोरेक्सिया हो जाए. तो दिस आर द लेटर इफेक्ट्स. देन इन इन्वेस्टिगेशन, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कराएंगे, यूरिया टेस्ट कराएंगे, स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ब्रेथ टेस्ट करवाएंगे, endoscopy passes a hollow tube equipped with a lens called endoscope down throat and to the esophagus, stomach and small intestine, and it will identify the ulcer. Then barium swallow, पेशेंट को बेरियम स्वेलो कराएंगे एंड देन एक्सरे में देखेंगे तो अल्सर विल बी मोर विजिबल. Biopsy is done to find out the underlying pathology and cancer if present. Then in complications, first is perforation. This long standing ulcer will make perforation and hole in stomach, and the fluid from stomach will enter into the peritoneum and will create peritonitis. This needs a medical emergency and urgent repair.
then large hemorrhage will cause excess bleeding and this can cause anemia and becomes life threatening. Then जब ये अल्सर हील होगा तो it will produce scarring and strictures and this will narrow the pylorus. तो pyloric stenosis हो जाएगा, narrow हो जाएगा pylorus and then this will cause abdomen pain, distension and reflux. तो पेशेंट में बेल्चिंग होगा, एसिडिटी होगा. ट्रीटमेंट में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देना है दैट विल ब्लॉक द स्टमक सेल्स दैट प्रोड्यूस एसिड्स. H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स दैट ऑल्सो ब्लॉक एसिड प्रोडक्शन. एंटासिड्स देना है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे. फॉलो अप एंडोस्कोपी करना है. प्रोबायोटिक्स दैट आर यूजफुल बैक्टीरिया दैट मे हैव अ रोल इन किलिंग ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. बिस्मथ सप्लीमेंट इज वेरी गुड. देन पेशेंट को मोटिवेट करना है कि नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, स्टीरॉइड्स, एंटीकोगुलेंट्स, ये सब कुछ छोड़ना है क्योंकि इसी से एपिथेलियम डैमेज हो रही है. स्ट्रेस नहीं लेना, अल्कोहल नहीं लेना, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है एंड पेशेंट को मोटिवेट करना पॉजिटिव थिंकिंग एंड वाटर इनटेक के लिए.